today's panel on a discussion about two things that are literally like yin and yang, jewelry and bullion. Moderator for this panel, please put your hands up for Mr. Shankar Sen of Senco Gold. ऐसा लगता है कि ताज ट्रिप के बाद सबको थोड़ा सा ताजमहल की अभी भी थोड़ा उधर ही अच्छा इंटरेस्ट सबको मिल गया, इसलिए थोड़ा सेशन में स्टार्ट होने में थोड़ा देर हो रहा है. We are slightly late to start this session, but today you are most welcome to attend this, and today we should be discussing for a very, very important issues that is looming large on the gold and jewelry industry. So we'll first try to understand that are consumer becoming sensitive to high gold price or moving away from purchasing gold jewelry. That has been a very recent development in the market that we are watching, because in this quarter of 2016-17 we are observing a downtrend in the import. We are observing some downtrend in the gold consumption in the country. So we have distinguished panelists with us who will also share their views, and also will invite your interaction on that. But if I have to react on the first question, are consumers becoming sensitive to buying gold in this high price situation? My instant reaction should be, buying gold, jewelry and precious metal has been ingrained in the culture in India. So, पहले भी India have witnessed the high price of gold. So, the demand for a short time was cut short, but then it is there. Gold jewelry का जो demand है, that will go on. That is what we understand from the market behavior. And historically in India, gold is seen as an investment tool. Basically in rural India, the India which is based in agricultural income. So that trend has not gone away. That is there. Now need of the hour is to create a range of jewelry which is acceptable to the contemporary ladies in regards to wearability and affordability. And as we all understand and observe that women in modern India are evolving rapidly. आजकल के ज़माने के भारत में जो नारी है, उनका बहुत जल्दी से परिवर्तन आ रहा है. उनका पसंद में, उनका लाइफस्टाइल में, उनका पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो रहा है. अब हम लोग को जो चाहिए कि ज्वेलरी जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट है फॉर इंडियन लेडीज़, उनके लिए उनके आजकल के कॉन्टेम्पररी मेंटलिटी के साथ ज्वेलरी को मैच करें, सो दैट अदर ट्रेंडी थिंग्स जो अभी चल रहा है उनका लाइफस्टाइल में, लाइक हाई प्राइस मोबाइल फ़ोन, फैंसी हैंड बैग्स एंड एपरल्स,
उसके साथ ज्वेलरी भी अपना पोजीशन, अपना एस्पिरेशन इंडियन लेडीज़ के सामने हम लोग रख सकते हैं। मिस्टर श्रीनिवासन is the managing director of Emerald Jewelry, one of the most prominent manufacturer of gold jewelry in India with a very organized factory in Coimbatore. I am inviting Mr. Srinivasan to put his views. I have been in the industry for last 32 years. This is the worst time I am seeing in my life. This is because of government policy. As a jeweler, we have a lot of grievances. I don't know why government is not listening. The problems, top in the list is disparity of gold rates. See, government is thinking to be organized, this sector, but now it is marching towards unorganized because of this rate disparity. See, they want to government, really they had a cat problem. To find a solution, they have created one more problem. One more problem, even government doesn't have a solution. According to me, if they reduce customs duty, things will be all right. As government expected, definitely will give a result. That is, industry to be organized. Second, PAN card issue. Yes, money circulation has to be curtailed, but there should be a way. What happens? All of a sudden, they put a smaller cap. See, industry, again, I can say 60-70% is unorganized. All of a sudden, you cannot expect a result. I think government should implement this in step by step, which they have missed. It made a big mess. This industry also, so much of people working. I think government should keep these things in mind, which they didn't. They have marched towards only one goal, that also not giving an expected result. Third, they have introduced central excise. Just they want this industry to be organized. For that, they have introduced central excise. Central excise also lot of problem. We people have to suffer. Government is thinking very soon GST will come and take place, so that no need to bother much on central excise. But actually seeing lot of problem in the central excise implementation, also lot of controversies, this, that. Then TCS, that is also giving a problem. It is affecting the business. All put together, industry shrink by, I think, 40%, 50% less. Everybody is facing a problem. Thank you very much. Again, I will contribute. We were discussing about the latest trend that we are observing for the last quarter, that gold jewelry demand has diminished, and this panel now discussing that whether high price has shied away Indian ladies to buy gold jewelry. So we invite your inputs into that.
definitely gold prices, going up and down. It's always one major parameter when domestic players, domestic gold consumption people or local people, those who consume gold, they always look into that. And you spoken about gold, men's jewelry. No, the overall jewelry market demand. Yeah. So definitely, see, gold is, as we have been discussing since last 2 days, now this third day, it's one of the very important parameter where people treat it as a asset, and they always invest it, but they invest always at the right time. And price going up is always one point where people don't invest, those who actually doing this for the purpose of investment. But at the same time, there are several other aspects looking into gold purchase and gold jewelry purchase, like somebody is really heading towards some family occasions, or there are certain specific occasions. As far as Indian culture is concerned, people don't look at the gold prices, people do purchase. So it is all depends upon the mind and the occasion which people want to buy gold for. But it's highly essential, if it is for the sake of investment, people do seek for the right time and then only they invest. Mr. Harshad Ajmera, please give your inputs. ज्वेलरी इंडस्ट्री में ग्रहण लगा है। ये 6 महीना से गवर्नमेंट की एक के बाद एक पॉलिसी अपने को इफेक्ट करती जा रही है। सबसे पहले आया पैन कार्ड, 2 लाख के ऊपर की ज्वेलरी बिक्री करने पे पैन कार्ड कंपलसरी किया, उससे भी अपने को इफेक्ट हुआ। उसके बाद में टीसीएस लगाया 1% टीसीएस अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तब तो 29 फरवरी को गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज 1% लगा दिया। 40 दिन तक स्ट्राइक चली, उसमें से अभी आगे निकल के देखे तब तक तो जीएसटी का भी अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में पास हुआ है। मतलब एक के बाद एक कठिनाइयाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से अपने ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत गवर्नमेंट ने जो 10% कस्टम ड्यूटी जो रखी गई है, उसी से बेसी इफेक्ट आ रही है। आज पूरे मार्केट में ग्रे मार्केट का दाम और ऑफिशियली मार्केट का दाम करीब 1 लाख से 2 लाख रुपए का डिफरेंस चलता है। तो ये सब कठिनाइयाँ गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से हो रही है। यदि आज भी रौनक आ सकती है यदि गवर्नमेंट थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप लेवे और ड्यूटी में यदि सुधार करता है, 10% से 5% कर देते हैं, तो फिर से रौनक आनी चालू हो जाएगी, ऐसा मेरा धारणा है। अभी मैं जोगेश सिंघल जी को थोड़ा आपने इस बारे में कुछ बोलने के लिए इन्वाइट करूँगा। आज हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। उसके साथ साथ सभी तरह के व्यापार भी तकरीबन मृत प्राय की स्थिति में है। हमारी इंडस्ट्री तो है ही, चूँकि हम गोल्ड इंडस्ट्री से हैं तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमको सरकार नए से नए कानून लगाकर हमारे व्यापार को खराब करना चाहती है, या कह लीजिए एफडीआई को देना चाहती है। हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक एक सुर में बात नहीं करेंगे, हमारी बात सरकार तक सही तरह से नहीं पहुंचेगी। इन 43 दिनों की हड़ताल में हमने बहुत कठिनाइयां झेली, सरकार के साथ खूब मीटिंग की। हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि सरकार को अगर हम अपनी ताकत दिखा करके सही तरह से अपनी बात रख सके तो सरकार को भी समझना पड़ेगा। आज ब्यूरोक्रेसी सरकार तक हमारी बात गलत तरीके से पेश करती है। हमको चोर कहा जाता है, हमको बेईमान कहा जाता है, और हमारी मीडिया के अंदर 43 दिनों में इतनी मट्टी खराब करी है कि हमारी इंडस्ट्री उससे बहुत चिंतित है।
आज सरकार टैक्स टेरर फैला रही है, जबकि हमारी सरकार ने कहा था इलेक्शन से पहले कि हम टैक्स हेवन देखना चाहते हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ पर एक आईडीएस स्कीम को ला करके इनकम टैक्स ऑफिसरों द्वारा हर एसोसिएशन में हर व्यापारी को फ़ोन करके बताया जा रहा है कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारे को मजबूरन, आपने मोदी जी का पूरा वो लेटर देते हैं हमारे को कि ये पढ़ लीजिए मोदी जी ने 23 तारीख की मीटिंग में क्या कहा था। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार हम अपना घर चलाते हैं, उसका बजट बनाते हैं, उसी प्रकार सरकार भी अपना बजट बनाती है और इस देश को चलाती है। क्या फर्क है व्यापारियों में और सरकार में? एक फर्क है बहुत बड़ा। सरकार पहले खर्चा करती है, बाद में 1 साल तक इनकम ढूंढती है। हम व्यापारी लोग हैं, पहले हम कमाते हैं, उसके बाद में हम खर्च करने की सोचते हैं। चलिए पहले वो खर्चा कर लेती है, कोई बात नहीं। इतना टेरर हिंदुस्तान में है टैक्स का, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। हमारा हिंदुस्तान 125 करोड़ जनसंख्या का देश है और हमारा बजट है 14 लाख करोड़। हम उसको 18 लाख करोड़ यदि पकड़ते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 रुपया टैक्स पड़ता है। कितना? 40 रुपया। और इसमें से अगर 50% लोग हम ऐसे निकाल देते हैं जो टैक्स नहीं दे सकते, तो 80 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन टैक्स पड़ता है। एक गरीब से गरीब आदमी जो सड़क पर रेड़ी पटरी लगा करके चाय बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वो 150 रुपया प्रति दिन सरकारी टैक्स सरकार की जेब में नहीं जाता, लेकिन सरकारी आदमियों की जेब में टैक्स जाता है। यदि सरकार हमारी सिस्टम को इतना इजी कर दे कि 80 रुपया वो टैक्स दे और 70 रुपया उसको सब्सिडी के रूप में बचे, तो जिंदगी भर वो सरकार के गुणगान करेगा और उसको किसी भी प्रकार की अपने बच्चों को पालने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो करोड़पति हैं, जो करोड़पति टैक्स देते हैं, वो अलग रहा। हमारे हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो वो कर्जदार पैदा होता है। हमारी सरकार यदि टैक्स को, उस कर्जे को टैक्स से उतार दे तो हमारे को ब्याज की इनकम भी शुरू हो सकती है। हम वर्ल्ड बैंक को लोन देने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन आज 3% लोग 100% लोगों का बोझ उठा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हम सरकार से बात करने की, उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ये समझे कि टैक्स का दायरा कैसे बढ़े, लेकिन हमारी बात हम पहुंचते हैं किसी और बात को लेकर और सरकार कुछ और रूप दे देती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे 10 करोड़ असेसी चाहिए। अब वो कैसे बढ़ेंगे? अधिकारी आएंगे, धमकाएंगे, उनके बैंक के खाते खंगालेंगे और उनको टैक्स लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। तो ये क्या है? ये टैक्स टेरर है। जब 80 रुपया रोज एक व्यक्ति पर पड़ता है और करोड़ों रुपए देने वाले भी काफी लोग हैं इसमें, तो इस सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम, एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में क्यों नहीं ला सकते? आज हम रात को सोते हैं तो डरते हैं, दिन में दुकान पे बैठते हैं तो डर रहता है। 50 प्रकार के टैक्स, 50 प्रकार के डिपार्टमेंट, कभी कोई चिट्ठा खोल के आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, उनकी मनमानी मांगे हमको पूरी करनी पड़ती है। तो हमें एक सिंगल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें अपनी बात सामूहिक तरीके से हर एसोसिएशन जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर है, वो एक मंच पे यदि हमारी परेशानियों को सच्चे रूप में पेश करे सरकार के सामने, तो मैं नहीं समझता कि सरकार को वो बात नहीं समझ में आएगी। अगर टैक्स कम कर दिया जाए, एक प्रकार का टैक्स कर दिया जाए, तो उससे बहुत फायदे हैं। आज सरकार कहती है कैट की समस्या है साहब आपको, इसलिए हमने 10% किया है। पहले हम मिले थे चिदम्बरम साहब से, जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि साहब BMW बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी जेब में पैसे हैं मारुति 800 के, बताइए मैं कैसे लेके आता हूं।
अरे जब ब्लैक मनी, वो कहते हैं 50% हिंदुस्तान में ब्लैक इकोनॉमी है और 50% वाइट इकोनॉमी है। यदि हमारे देश के अंदर सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि रूट लेवल से यदि हम बैंकों के अंदर काम करेंगे, टैक्स डर खत्म होगा, तो सब लोग उस दायरे में आएंगे और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज वो कहते हैं कि साहब आप सबसे बड़ा जरिया हो काला धन छुपाने का। आपसे लोग सोना लेके जाते हैं और डेड मनी के रूप में वो बैंकों में और कहीं भी उसको रख देते हैं। उसके लिए भी व्यापारी जिम्मेदार है। हमने उनको कोशिश की है कि भाई कैश करेंसी ही बंद कर दीजिए, ताकि जो भी काम होगा बैंकों के द्वारा होगा और चोपड़े के अंदर आपके होगा। जो टैक्स के दायरे में है 5 लाख की 10 लाख की जितनी छूट देते हैं वो बच जाएगा, बाकी ऊपर टैक्स देगा। तो मैं समझता हूं 10% टैक्स भी सरकार हमसे ले नहीं पाएगी। इतना टैक्स सरकार के पास आ जाएगा कि सरकार को इसके बारे में जरा भी एहसास भी नहीं होगा। सरकार के खजाने हम लोग भरना चाहते हैं, लेकिन सरकार योगेश जी, तरीका गलत है। योगेश जी, एक सवाल आया है ऑडियंस से कि हम लोग को सबके लिए सवाल है कि ये सही है क्या हम लोग अपनी इंडस्ट्री के सब समस्या के लिए सिर्फ सरकार को ही ब्लेम करें? क्या अपने अंदर झांकने का जरूरत नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रही है और कैसे हम लोग अपनी इंडस्ट्री को सुधार पाएंगे और सुधारना उचित है? हर सवाल की जवाब अगर सरकार के ऊपर हम कंधे पे डाल दें, क्या इंडस्ट्री तब सही दिशा में चलेगी? इसमें हम पहले मिस्टर श्रीनिवासन को बोलेंगे अपना रिएक्शन। ये सवाल सही है। सबको ऊपर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो बोलता है वही हमको कर सकता है। हम जो बोलते हैं गवर्नमेंट तो करता नहीं है। अभी एक्चुअली क्या कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन लेगा सर? अभी जो भी हो रहा है गवर्नमेंट ही ना, गवर्नमेंट ही बोला, गवर्नमेंट के हिसाब से ही कंट्री चलता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ही होता है। I would definitely, slightly differ from the common, opinion that because I basically belongs to the Responsible Jewelry Council, and what we do have is we do have a standard. We create standard, which is made by industry and for industry, which is again world-class standard and very well known and recognized across the globe. Mainly in US and Europe, where you want to do business. If you want to do business, it is highly required that you need to have membership under Responsible Jewelry Council. Now, the format of our council is such that we are not for profit organization first of all, and we are not voluntary. We are voluntary standard. We are not compulsory standard. So when we have been discussing about Indian scenario and whether for everything government is responsible or not, I do feel that we also need to take some responsibility on our shoulders. That okay, there are two ways of looking at each and everything. Either you do something with the government imposing on you, or you do something which is voluntary and you go and tell government that okay, we have been doing something independently on our own, which you see what our system is, and based on that we don't feel that you need to have regulatory compulsion on us. Likewise, we have been discussing since last 2 days about international rules and regulations and the US Dodd-Frank Act and all. So US government is I'm just taking this example, that US government is also very keen on imposing rules and regulations on the industry, and the Dodd-Frank Act, they have made it compulsory applicable to several industries in US. But during that time when people across the globe, mainly in jewelry industry and diamond industry, they were aware that there are some kind of rules and regulations going to come, and looking at that parameter, what they have done is that they all got together across the globe. They came up on a single table and they have tried to make some mechanism in order to demonstrate their compliance, which is voluntary compliance. Likewise, there are certain regulatory compliance also. Likewise, Kimberley process,
certification scheme, which is one of the very fantastic initiative, because of which today diamond industry is not into Dodd-Frank Act. Similarly jewelry industry. So this is very clear-cut example that if you do something voluntary and you demonstrate your way of doing business responsibly and accountable way, I don't think government will impose certain rules and regulations on you. So as we have been discussing, we all need to come on a single platform, and then we need to demonstrate our way of doing business, which is accountable, responsible way, and then I don't think government will put too much pressure on the industry. You mean to say that now the industry or the association should come up with kind of self-regulatory process? Like example that no member of any association should buy any gold from questionable sources, from sources other than the official sources. This kind of self-discipline you suggest that we should impose on ourselves. See, self-discipline is yes one thing, but self-discipline, like everyone is doing business in self-disciplined way, because when I am doing business, it is me who want to know where my single dollar or single rupee is lying at, whether it is at a huge risk of reputation, whether it is at huge risk of I am losing my money or not. So self-discipline is always there, but what we need to do, we need to structure it. So what we need to do something which can through which we can easily demonstrate that we have been following separate special practices, and it has been audited or approved by external people. So those kind of mechanism which actually we run for, and lot of people, lot of companies, major retailers are very much happy with our rules and regulations, and they very strongly recommend all their clients to in any which ways comply with Responsible Jewelry Council standard, so that tomorrow government of European countries and USA will not impose stringent taxes and stringent rules and regulations on the industry. हर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है, कोई भी ले लीजिए, हर इंडस्ट्री किस तरह आगे बढ़े इसके लिए हमेशा गवर्नमेंट प्रयास करती है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़े उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है, अपने लिए रिवर्स है। किस तरह? क्योंकि अपनी रॉ मटेरियल हमेशा अपने इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि अपनी इंडस्ट्री डेवलप करे, और अभी की परिस्थिति का कारण मैं समझता हूं कि अपने ज्वेलर्स खुद ना होके गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है। देखिए, दो तरह की समस्या बताई, एक इंटरनली और एक सरकार के साथ। सरकार अगर हमको हेल्दी माहौल देगी, दो रास्ते अगर हमको सरकार देती है, एक ग्रे मार्केट का और एक व्हाइट मार्केट का, तो आपकी चॉइस है कि आप व्हाइट की तरफ जाएं या ग्रे की तरफ जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे को एक ही रास्ता अगर सरकार देगी तो हम ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म निभाएंगे और पूरा टैक्स देंगे। दूसरी बात हमारे अंदर झांकने की है, वो हमारा इंटरनली हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे कोई IR की प्रॉब्लम है, प्योरिटी की प्रॉब्लम है, हॉलमार्किंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम अपनी इंडस्ट्री को गाइड करते रहते हैं। अजमेरा जी भी हैं, हम लोग हर तरह से अपने व्यापारियों से भी लड़ाई लड़ते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार से हम सिर्फ इतना चाहते हैं, देखिए हम सब मांगते हैं सरकार से, देना नहीं चाहते हैं। सरकार को टैक्स चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कर्जा लेके सरकार चलाएगी, उसका ब्याज हमको देना पड़ेगा, वो चीज हमारे भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस टैक्स की वसूली के लिए हमारे को शेरों के सामने नहीं डाला जाना चाहिए। हमको एक रास्ता देना चाहिए कि आप इस रोड पे चलिए, हमारे पास कोई साधन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हम उसको टूल को इस्तेमाल करके और अपने राष्ट्र धर्म में कोई अड़चन पैदा करें। दूसरा एक सवाल आया है दर्शकों से कि ये जो अभी चाहिदा के डिमांड के जो स्लो डाउन हुए हैं ज्वेलरी मार्केट में, इसमें क्या जैसे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है या MMTC है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके जो पहले जो जेनरिक गोल्ड ज्वेलरी के जो
एक पब्लिसिटी होते थे एक डिमांड क्रिएशन के लिए, ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है। कंज्यूमर में गोल्ड ज्वेलरी या ज्वेलरी के जागरूकता के लिए इनके डिमांड ये करने के लिए, डिमांड जगाने के लिए कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, सिवाय कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना पब्लिसिटी चलाने के लिए। ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। तो क्या ये सब ऑर्गेनाइजेशन लाइक WGC या MMTC को अभी सामने नहीं आना चाहिए ये डिमांड अपस्केल करने के लिए? इसमें मिस्टर श्रीनिवासन आपको क्या? कंट्री में मनी फ्लो अभी बराबर नहीं है, वो ही एक रीज़न है बिजनेस कम होने का। सेकेंड रीज़न आपने जो बोला, ये एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत है, प्रमोशन का ज़रूरत है, वो अभी अच्छा अपन कर रहा है तो चलो अच्छा चलता है, किसके लिए करने का ऐसा करके था, वो ये गलत हुआ है। उसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा कि ये प्रमोशनल 100% ज़रूरत है, क्योंकि अपने को भी बहुत सारा इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। वाइट गुड्स बहुत डोमिनेट अभी कर रहा है। वाइट गुड्स डोमिनेट करता है तो नेचुरली गोल्ड का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होता है। गोल्ड का इम्पोर्टेंस हमको बताना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनली सोशल सिक्योरिटी के लिए गोल्ड काम आता है, वो अपन भूल नहीं सकता। हमारा गवर्नमेंट का तकलीफ के टाइम पे हमारा गवर्नमेंट से इतना मदद तो अपने को मिलता नहीं है। हम जोर से बोल सकते हैं ये गोल्ड ही तकलीफ का टाइम पे काम आता है, ये ट्रेडिशनली प्रूव भी हुआ है। इसको अपन अच्छी ढंग से प्रमोट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये थोड़ा 2-3 पॉइंट है, वो एड्रेस कर दिया तो अपना इंडस्ट्री सुधर जाएगा। Generic advertisements of any product which is highly essential, and those who are the different stakeholders in industry, they always have to get together. They come on a single platform and they have to start doing generic promotion. But this is always, very crucial that who will initiate first, and whether those who are all stakeholders, whether they come on the same platform, whether they do agree and when they initiate. Like, I would just like to give you one example of few years back, maybe 7 years back, there was a generic advertisement campaign need to be done for diamond industry, and all rough producers, basically they got together in Geneva. Everyone agreed, but one minor didn't agree, and because of that time, 7 years back, that common generic advertisement initiative was not there. But then eventually, after 7 years, everyone realized that if we don't do that, then someone else will eat our cake. Likewise, electronics or gadgets and all, which has immense market in world across the globe, and mainly the new generation, which is coming up generation, which really need to spend for jewelry or diamond jewelry or something which is eventually asset, but they are spending more money into gadgets and laptops and iPads and all, which are all electronic items, which will have fantastic depreciation in the cost only after 1 year, whereas jewelry, gold and all has same value or maybe more or less something plus minus 10%, not more than that. So I do agree that everyone need to be on a single platform. They need to come together and have to do something for a generic advertisement, which is one of the best example right now. There is an association named DPA, Diamond Producing Association, and all producers, main producers of diamond, they got together and they have started doing generic advertisements and what they want to do on common advertisements. So it is really effective. मैं समझ रहा हूँ कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल या MMTC सबको अवेयरनेस के लिए, गोल्ड के ऊपर में अवेयरनेस के लिए जो आगे में जैसे पब्लिसिटी होती थी, ऐसे पब्लिसिटी करनी चाहिए।
ये करने से पब्लिक में जानकारी होगी और उसका गोल्ड खरीदने से क्या क्या बेनिफिट है ये भी बताना पड़े कि लास्ट 2 साल में जो माइनस में चल रहा था रेट के ऊपर में बात कर रहा हूँ, जो दिवाली से आज तक कितना परसेंटेज उसको बेनिफिट मिला है, 25%, 20% तक का प्रॉफिट हो रहा है। गवर्नमेंट ने वेल टैक्स भी हटा दिया है, ताकि नहीं तो ज्वेलरी के ऊपर में वेल टैक्स भी लगता था। तो और अभी ज्वेलरी अच्छे बुरे वक्त के अंदर में ज्वेलरी ही काम आती है, गोल्ड ही काम आता है, उससे ज़्यादा सेफ कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अच्छे बुरे टाइम में हर कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये सब की अवेयरनेस खाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और एमएमटीसी ही नहीं, मेरे हिसाब से तो ज्वेलरी एसोसिएशन ने रेगुलर मीडिया में आर्टिकल दे के इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आवे और गोल्ड फिर से बेसिक खरीदे। देखिए, इसके मेरा पर्सनल मत है, मैं 2 बड़े कारण मानता हूं जो हमारी इंडस्ट्री के सेल घट रही है, ये कैसे बढ़ेगी। एक तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी पारदर्शिता की कमी पिछले कुछ सालों से महसूस हो रही है। जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी पीछे एक क्वेश्चन उठाया था कि यहाँ पर हॉलमार्किंग नकली हो रही है, तो मैं अजमेरा जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हॉलमार्क सेंटर को संभालें, कि वो ठप्पा लगाना बंद करें और प्योरिटी को सही प्योरिटी के रूप में ही उस पर ठप्पा लगाएं। तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है अजमेरा जी से। दूसरा कारण, आज की जो जेंट्री है, जो हमारे आने वाली ये पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग थे, एक पीढ़ी वो थी, हम तो बीच में हैं, ना इधर ना उधर। एक पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, उनका मोह ब्रांडेड कपड़े, अच्छे मोबाइल, बढ़िया गाड़ी, उनका सारा पैसा EMI में खर्च हो जाता है। विदेशी टूर, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, लेकिन कुछ ना कुछ बचत सोने में लगा के रखते थे। तो वो कल्चर हमें अपने अपने घरों में, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल या MMTC कुछ नहीं करेगी। हम सभी यहाँ से कसम खा के जाए कि अपने घरों में अपने अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि भाई ये महंगे मोबाइल 50,000 का, 1 लाख रुपए का कुछ काम में नहीं आएगा। 50,000 रुपए का पर्स है लेडीज का, 50 लाख रुपए तक के पर्स मैं तो देख के दंग रह गया। हम 10 रुपए का थैला लेके जाते थे, वो भी घर के कपड़े को फाड़ करके उसमें से जो बचता था वेस्ट, उसमें से थैला बनता था सब्जी के लिए। आजकल ब्रांडेड थैले आते हैं, जितने की सब्जी नहीं है उससे ज्यादा महंगा थैला होता है। तो ये 2 कारण हैं। एक हमारी बेईमानी हमारे इंडस्ट्री की हमें समझनी होगी, हमें किसी के ऊपर नहीं छोड़ना होगा कि हमारी इंडस्ट्री में ये सब हमारे क्लाइंट बैठे हैं, हम भी क्लाइंट हैं। हम बुरे वक्त के लिए ज्वेलरी क्यों खरीदें? 60% का माल यदि 22 कैरेट में 92 में पास होगा तो बुरा वक्त तो पहले ही आ गया हमारा, बाद में तो पैसे मिलेंगे नहीं उसके। तो ये चीज मैं पूरी इंडस्ट्री को कहना चाहता हूं कि प्योरिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी इंडस्ट्री एक दिन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या ये FDI आएगी, ब्रांडेड लोग ये ले जाएंगे, हम उनके यहाँ पर नौकरी करेंगे। तो पहले अपनी प्योरिटी अपने घर से सुधारें, उसके बाद हम अपने बच्चों को समझाएं कि भाई थोड़ा पैसा बुरे वक्त के लिए भी काम में रखो। कल को आज हम इंश्योरेंस कराते हैं कि बीमार हो जाएंगे तो वहां से मिलेगा, उसकी किस्त चली जाती है, गाड़ी की, इंश्योरेंस की, तो ये चीज महंगी, हम सारा पैसा उसी में खर्च कर देते हैं। तो 2 मेजर कारण है। धन्यवाद। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि हॉलमार्किंग में ठप्पा लग रहा है, बराबर है, तो इसके लिए BIS की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तरह का हॉलमार्किंग में से खाली मार्किंग का सेंटर न रहे। उसके लिए लास्ट ईयर 4000 पीस मार्केट सैंपल के हिसाब से उठाया गया था। उसमें से जो लेबोरेटरी का 3 सैंपल फेल हुआ है उसको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। इसी हिसाब से लास्ट ईयर 24 लेबोरेटरी को डी-रिकॉग्नाइज किया गया था। और साल भर में जितने ऑडिट हुए हैं हॉलमार्किंग सेंटर में से, उसमें से लगभग 20 लेबोरेटरी को
उसने स्टॉक मार्किंग दी गई थी। देखिए BIS अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाली BIS की कोशिश से नहीं होगा, ज्वेलर्स को अवेयरनेस लानी पड़ेगी। वो ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर में प्रेशर नहीं देना पड़ेगा कि आप इसको कोई भी हालत में मार्का लगा के दीजिए। आज एक सेंटर खोलते हैं 1 करोड़ रुपया की लागत से खुलता है, आज उसको 3 से 4 लाख रुपया पर मंथ रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसीलिए उसकी मजबूरी से हो सकता है, मैं भी जानता हूं कि थोड़ा बहुत 19-20 काम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इसको रोका जावे। और भविष्य में मैं आपको बताऊं कि यूनिक ID भी आ रहा है, जिससे ये जो काम हो रहा है पूरी तरह रुक जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, नया लॉ के अंदर में पूरा प्रावधान रखा गया है। और एक सवाल हम लोग को सामने आ रहा है कि अभी कुछ हमने वक्ताओं ने ये बारे में बात किया कि पैन कार्ड का इशू है, TCS का इशू है। अभी ये समस्या हम लोग को सोचना है कि ये सब नया रेगुलेशन के लिए क्या ज्वेलरी बायर मार्केट से हट गया है? क्या उनके मन में ये डर पैदा हो गया? They are afraid of buying jewelry now. They are shying away from the jewelry market. कि now buying jewelry is a problematic thing. Buying jewelry might invite lot of inquiry and scrutiny from the taxation authorities. Therefore, consumers are shying away from buying gold jewelry, or rather any kind of jewelry. What we think that, of course, there are compliances in the market introduced by the government, and as an industry body, we are trying to simplify those regulations so that the market demand does not affect. But at the same time, if we see that there are certain regulations which are put on government due to global situations, where even the government cannot shy away. Therefore, as an industry body, as a responsible industry body, we are trying to accommodate with those regulatory climate. Like we all know that GST is now a matter of time when it will be introduced all across the Indian economy. Therefore, we are all ushering into a new regulatory climate in India. And we have to accommodate that, we have to cope up with this new situation. Therefore, we have to understand कि ये जो 2 लाख की पैन कार्ड की इशू है, जिसके लिए कस्टमर अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा हेजिटेट कर रहा है लेने में। कुछ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख के नीचे का कैसे ज्वेलरी बनाया जाए जो कि कस्टमर इजीली ले सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जोर से हो रहा है। तो उनको 2 तरफ से देखने का जरूरत है, या तो एक पॉजिटिवली you try to cope up with the problem, or there is another way to lobbying with the government to simplify the procedure. इस बारे में मिस्टर श्रीनिवासन क्या बोलना चाहते हैं? सर, कस्टमर का मन में तो ज्वेलरी लेने का ही है। अभी ये सवाल आता है कि कैसा लेने का, क्या करने का। उसके पास एसेट्स जो भी है वो लिक्विडिटी नहीं हो रहा है, कैश फ्लो नहीं है। ये रीज़न का हिसाब से ही ये सब हो रहा है। पहले कैश फ्लो होना मांगता है, कैश फ्लो हो गया तो 100% जो इन्वेस्टमेंट है ज्वेलरी पे आएगा। ज्वेलरी पे आएगा तो ऑटोमेटिक अपना बिजनेस होएगा। दूसरा, आप जो 2-3 बोला, नहीं, कंज्यूमर के दिमाग में ये भी है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करता है ये सही इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, ये डाउट भी आया हुआ है। क्योंकि
मीडिया में आ रहा है कि इंफीरियर ज्वेलरी 60%, 70%, 80% ऐसा करके आ रहा है, वो सब देख के डर जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट करे या दूसरा बैंक में डिपॉजिट करे या दूसरा कुछ करे, ऐसा करके हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ज्वेलर का ही है। ज्वेलर इंश्योर करना पड़ेगा कि अपन जो भी देते वैल्यू फॉर मनी होगा करके। ये सब अपन एड्रेस किया तो 100% ये सुधर जाएगा। See, government may impose any rules and regulations, which is the work of government and which they have to do, and they have been doing it and they will keep on doing it. What we all Indians know is that how to do the business in our own way, complying with the government rules and regulations. I have seen several schemes, after this 2 lakh PAN card, rule got implemented. After that, there are several jewelers who have came up with a fantastic scheme, which is like exactly dot at 1,99,000 rupees or something like that, and they have been still doing business. So I look at this thing from the different point of view. I fully believe that there is always a way to do the business and to deal with the situation. What we all need to do is that we need to behave accordingly, which you have very rightly said that jewelers need to do something which should be creative, which should be techy, and at the same time in compliance with the government rules and regulations also. देखिए, ये समस्या का हल नहीं है। जितना सरकार हमको नीचे गिराता रहेगी उतना ही हम हल्की ज्वेलरी बनाते रहेंगे। आज जो 50 लाख का सेट बेचता है, 25 लाख रुपए का हीरे का सेट बेचता है, वो कहाँ जाएगा? श्रीनिवासन जी तो 2 लाख से 1 लाख से भी कम बना देंगे, लेकिन जो डायमंड वाले बैठे हैं वो कैसे करेंगे? ये समस्या का हल नहीं है। जिस प्रकार पेट में कब्ज होता है, सभी को पता होगा ये तो, उससे सारी बीमारी पैदा होती है, हार्ट अटैक की भी, बीपी, शुगर। हमको इनकम टैक्स की समस्या है। आप सब लोग बैठे हो, लेकिन कोई शायद नहीं कहना चाहेगा, क्या इनकम टैक्स स्लैब रेट कम नहीं होना चाहिए? क्यों काला धन पाया जाता है? कोई खेतों में पाया जाता है काला धन, कहां पाया जाता है? ये जनरेट होता है। इस जनरेशन के ऊपर R&D होनी चाहिए। हम लोगों को सरकार के साथ जब तक बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, सरकार को चाहिए टैक्स, और जितना टैक्स सरकार चाहती है हम सब मिलकर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जितनी फाउंडेशन, कहते ना चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, जितने रास्ते बंद करती है सरकार, दूसरे रास्ते हम खोल देते हैं। ये सारी परेशानियां, सारी जकड़न, ये उसी बात के लिए है। तो हमको खुल के वित्त मंत्री जी से 1 to 1 बात करनी चाहिए कि भाई आपको टैक्स कितना चाहिए, वो हम सब लोग अपने अपने शहरों से इकट्ठा करके दे देंगे। कहिए तो बॉन्ड पेपर भरा के दे देंगे। हमने तो वित्त मंत्री जो कहा था 16 मार्च को कि हमसे बॉन्ड भरवा लीजिए। हमारे जितने मेंबर हैं कितना टैक्स देंगे? एक एक मेंबर 10-10 गुना टैक्स देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई 10 लाख की इनकम दिखाता है और वो 20 लाख की करता है, तुरंत उसको आईटीओ बुला लेता है, भाई ये 10 लाख की 20 कैसे हुआ जरा बताइए। उसका उतने ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये सब लोग हमारे व्यापारी पीड़ित हैं इस टैक्स सिस्टम से। जब तक ये नहीं सुधरेगा, 2 लाख की लिमिट 5 लाख कर देंगे तो भी समस्या हल नहीं होगी, और 1 लाख कर देंगे तो भी समस्या हल नहीं होगी। हर्षद जी के लिए सवाल आया है, लास्ट 1 साल में कितने हॉलमार्किंग सेंटर नया खुला है, आप बता सकें? आज की तारीख में इंडिया में 375 हॉलमार्किंग सेंटर है। लास्ट ईयर कितना खुला है? लास्ट ईयर नए 25 आए, पुराने 24 गए। अच्छा, तो बराबर ही है पूरा। इज इट सफिशिएंट नंबर फॉर होल इंडिया? ये सफिशिएंट किस लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 15-16 के अंदर में हम लोग ने 3 करोड़ 50 लाख पीस हॉलमार्क किया है। ऑल ओवर इंडिया से 15 ग्राम का एवरेज पकड़ने से 525 टन ज्वेलरी हॉलमार्क हम लोग ने की है। और लास्ट ईयर ज्वेलरी प्रोडक्शन था 688 टन, 688 टन। 688 टन में से 525 टन ज्वेलरी हॉलमार्क की गई है। आपने 200 टन यदि आप एक्स्ट्रा रिसाइकलिंग की ज्वेलरी पकड़ेंगे तो 950 टन ज्वेलरी का प्रोडक्शन को हॉलमार्क करने का है। आज 3 करोड़ 50 लाख पीस डिवाइडेड बाय 375 डिवाइडेड बाय 300 दिन,
पर डे का एवरेज 311 पीस पर सेंटर, पर शिफ्ट, पर मशीन का सेट से होता है, जबकि हमारी कैपेसिटी 2000 पीस पर डे की है। आज की ज्वेलरी से 5 गुना भी ज्वेलरी आती है तो हम लोग तैयार है हॉलमार्क करने के लिए। इसके मतलब है, आपको बोलने का है, अभी जो हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में, ये काफ़ी है अगला 5 साल का डिमांड को कोप अप करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। जी एकदम तैयार है। आपको मैं बता दूं कि जितने इंडिया के अंदर में 6 मेन मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंडिया के अंदर में 6 मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, राजकोट, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, जयपुर, ये सब से जगह के अंदर में हम लोग के सफिशिएंट सेंटर है। यहाँ से पूरी हॉलमार्क होके ज्वेलरी पूरे इंडिया में जाती है। मैं आपको फिगर बताना चाहूँ कि ये सेंटरों के अंदर में, जैसे दिल्ली के अंदर में 25 सेंटर है, कलकत्ता के अंदर में 29 सेंटर है, मुंबई के अंदर में 48 सेंटर है, कोयम्बटूर में 42 सेंटर है, जयपुर में 14 सेंटर है, राजकोट और अहमदाबाद में 34 सेंटर है, दिल्ली में 25 सेंटर है। इस जितने मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां से पूरी हॉलमार्क होके ज्वेलरी ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये तो 375 सेंटर तो अभी फिलहाल है, दूसरे 100 सेंटर पाइपलाइन में है। विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर में दूसरों 100 सेंटर और आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्वाइट सफिशिएंट है। यदि गवर्नमेंट चाहे, यदि कल डिक्लेयर करे तो हम लोग तैयार है उसके लिए, और किसी को भी कोई भी जगह असुविधा नहीं होगी हॉलमार्किंग करने के लिए। ये जानकारी मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन ऑडियंस के लिए बहुत ही एनलाइटिंग रहा, और बहुत कुछ जानकारी सुन के ऐसा लगा कि नाउ इंडिया इज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर हॉलमार्क क्लाइमेट इन द ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। तो सब ग्राहकों को, सब कंज्यूमर को हम लोग 100% हॉलमार्क ज्वेलरी देने में अभी ज्वेलर्स कम्युनिटी इज रेडी फॉर दैट। आई थिंक दैट, और एक बात मैं बताना चाहूँगा, बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन मार्केट। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक को, इंडिया 125 करोड़ पब्लिक के जो ज्वेलरी जहाँ से भी खरीदे उसको सही प्योरिटी की ज्वेलरी मिले। उसीलिए उसने पेंडिंग बिल, कई सालों का पेंडिंग बिल जो पड़ा हुआ था पार्लियामेंट में पास कर दिया है। अभी BIS एक्ट बन गया है, उसकी गाइडलाइन अभी तैयार हो रही है। विद इन 2 मंथ के अंदर में पूरी गाइडलाइन तैयार हो जाएगी। उसके बाद लॉ मिनिस्टर को भेजी जाएगी। एक बार ओके हो जाता है तो अपने कंज्यूमर एफर्ट के मिनिस्टर पासवान जी ने भी आगे भी एक बार अनाउंस किया था, हो सकता है कि दिवाली के अंदर में, ये दिवाली के अंदर में हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपलसरी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। यदि कंपलसरी का अनाउंसमेंट करेगा तो चिंता की बात नहीं है। जिसको दूसरी क्वालिटी का स्टॉक है उसको भी टाइम दिया जाएगा, 6 महीने का टाइम दिया जाएगा अपना स्टॉक कन्वर्ट करने के लिए। 6 महीने के बाद में हो सकता है उसको हॉलमार्क की ही ज्वेलरी बिक्री करनी पड़े। दूसरी भी एक जानकारी मैं दूं, नए लॉ के अंदर में जो आज के तारीख में 23 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट, 18, 17 सब के ऊपर स्टाम्प लगता है। कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। कस्टमर हॉलमार्क होता है 21 कैरेट का, वो समझता है हॉलमार्क है मतलब बहुत बढ़िया माल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी बात नहीं है। वो 22 कैरेट का माल ही नहीं है, वो 21 कैरेट में हॉलमार्क किया हुआ है। कस्टमर इसमें कंफ्यूज होता है। इसलिए गवर्नमेंट में जो नई पॉलिसी आ रही है, नए लॉ आ रहे हैं, उसके अंदर में 3 प्योरिटी खाली रहेगी, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। ये 3 ही कैरेट रहेगा। और ये 3 कैरेट 916 के हिसाब से लिखा नहीं जाएगा, 750 के हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। उसके बदले में स्ट्रेट कट जो अपनी इंडियन पब्लिक समझ सकती है उसी भाषा में लिखा जाएगा, 22 के, 18 के और 14 के, ताकि कस्टमर कहीं भी गुमराह न हो कि हॉलमार्क है, उसको सही माल मिला है, उसको जितना पैसा लगा है उतना ही प्योरिटी का माल पूरे देश भर में सबको प्राप्त होगा। एक सवाल आया है कि अभी ये सब हॉलमार्किंग सेंटर में क्या सिर्फ XRF मशीन यूज होता है या फायर से भी
चलता है। तो इसके छोटा सा जवाब एज ए ज्वेलर मेरा पास थोड़ा है, आप थोड़ा मेरे को बोलिए मैं सही बोल रहा हूँ क्या नहीं। सर, एज पर द BIS रूल्स कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर में सिर्फ XRF मशीन से नहीं काम चलता है, फायर ऐसे भी मैंडेटरी है। एंड एज पर द रूल अभी एवरी 40 टेस्टिंग 1 फायर ऐसे इज मैंडेटरी एंड इट गोज ऑन रैंडम बेसिस एंड दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ज्वेलर्स कंसर्न कि वो चेक करें हॉलमार्किंग सेंटर एवरी 40 पीसेस में फायर ऐसे सर्टिफिकेट निकल रहे या नहीं रहे, तो उनका जानकारी भी ज्वेलर को हासिल करना उचित होगी। Am I right, Mr. एकदम राइट है सर, आप पूरी जानकारी रख रहे हैं। इसी तरह यदि अवेयरनेस सब ज्वेलर्स में यदि होता है तो डेफिनेटली सब सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सही काम करेंगे। और यदि किसी को भी कोई भी सेंटर से शिकायत है, गलत काम करते हैं, आपको लग रहा है कि खाली वो मार्किंग ही करते हैं, तो आप इमीडिएटली आगे आइए, BIS की ऑफिस में उसकी कंप्लेन करिए और मार्केट सैंपल के हिसाब से वो ज्वेलरी को उसको दीजिए BIS को, उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। और एक ही सेंटर का 3 ज्वेलरी फेल होता है तो वो सेंटर इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पूरे देश से मेरे पास एक सवाल आया है और रोज ही आता है कि BIS और होल मार्किंग सेंटर IR के विषय में क्या तैयारी कर रहे हैं। IR यानी कि हमारी देसी भाषा में पाउडर, शायद आप लोग समझते होंगे। IR मतलब पाउडर, इरेडियम रुथेनियम, उसके लिए BIS और होल मार्किंग सेंटर क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री को खोखला कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि PGM ग्रुप ऑफ मेटल ज्वेलरी के अंदर में कई सालों से मिलाते थे और उसका पकड़ने का काम भी हॉलमार्किंग सेंटर के द्वारा ही किया गया है। हॉलमार्किंग सेंटर ने फर्स्ट ऑफ ऑल PGM ग्रुप ऑफ मेटल पकड़ के सामने रखा कि इस तरह का PGM ग्रुप ऑफ मेटल मिलाया जाता है और उसकी अवेयरनेस लाई गई है। और आज के तारीख में जितने भी हॉलमार्किंग सेंटर है सबके अंदर में, SRF के अंदर में ईच एंड एवरी ज्वेलरी में से उसको फाइंड आउट करना है कि उसमें KDM PGM ग्रुप ऑफ मेटल है कि नहीं है। ये अलग बात है कि 1 या 2 स्पॉट देखने से वो जानकारी नहीं होती है, मैं भी समझ रहा हूँ कि उसके अंदर में वो मिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो 2200 डिग्री से मेल्टिंग होता है, वो स्प्रेड आउट होता है। यदि 8-10 पॉइंट देखेंगे तभी वो जानकारी पक्की मिलेगी। फिर भी हम लोग 1 या 2 पॉइंट देख के कोशिश करते हैं कि PGM ग्रुप ऑफ मेटल है कि नहीं है। और उसके बाद में जब हम स्क्रैपिंग करके फायर से करते हैं तो उसका जो कॉर्नेट बचता है उसको भी आई ग्लास से हम लोग चेक करते हैं कि उसके ऊपर में यदि कोई जगह पे काला स्पॉट रहता है तो उससे हमको जानकारी हो जाती है कि इसके अंदर में इरोडियम या कोई PGM ग्रुप ऑफ मेटल है कि नहीं है। यदि कुछ भी PGM ग्रुप ऑफ मेटल रहता है तो हम ज्वेलरी को फेल कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। और PGM ग्रुप ऑफ मेटल की ज्वेलरी में हम हॉलमार्क करते हैं तो हमारे ऊपर में पनिशमेंट डाला गया है। तो हम हमारे हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी ज्वेलरी में PGM ग्रुप ऑफ न हो, उसी को हम हॉलमार्क करें। Last year we are all aware that the Modi government has announced gold monetization scheme, but so far as we know that it has not been very successful in the market. There are several causes for it, बहुत सारे इसमें इशू है। तो अभी हम ये प्लेटफॉर्म में थोड़े से इसके बारे में चर्चा करें कि BIS अप्रूव्ड ज्वेलर्स जो है वो GMS स्कीम को सफल करने में, सक्सेसफुल करने में क्या योगदान दे सकते हैं, और इसके लिए बैंक को सामने और गवर्नमेंट को सामने क्या पॉजिटिव एक सजेशन हम लोग दे सकते हैं कि जैसे पब्लिक एट लार्ज, जो कंज्यूमर, जिसको पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है GMS को सक्सेसफुल करने में, क्योंकि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो करेंट अकाउंट डेफिसिट को सॉल्व कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। So it will rather have a very much healthy, environment in the whole economy. Therefore, ये GMS स्कीम के BIS अप्रूव्ड ज्वेलर को
पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए और क्या सजेशन देना चाहिए? आई विल इनवाइट मिस्टर श्रीनिवासन व्यू ऑन दैट। 2 रीज़न के हिसाब से ये चल के ये गोल्ड मॉनिटाइजेशन सक्सेस नहीं हो रहा है। नंबर 1, जब भी बैंक में डिपॉजिट देने के लिए जा रहा है वो तो पूछेगा कि सोर्स। अभी एक्चुअली कि ये दागिना है 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, कितना भी साल पुराना, किसी को भी आता पता नहीं है, ऐसा जनरेशन टुगेदर पास ऑन होके जा रहा है। अभी उसका अता पता मालूम करने का तो बहुत तकलीफ होता है। दूसरा, ज्वेलरी बनाने के लिए वैल्यू एडिशन लगभग 10-15% हो रहा है। उसको गला के डिपॉजिट करने में उसको नुकसान जा रहा है। वापस उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। वो रिकवरी होने के लिए 10 साल लगेगा। ये 2-3 रीज़न के हिसाब से ही ये फेलियर हुआ। कुछ गवर्नमेंट इसमें सोच समझ के कुछ अमनेस्टी या कुछ भी रिलैक्सेशन किया तो मेरा सजेशन नहीं, उसमें रिलैक्सेशन गवर्नमेंट कुछ करना पड़ेगा। अगर रिलैक्सेशन किया 100% ये गोल्ड मॉनिटाइजेशन सक्सेस हो सकता है। अगर रिलैक्सेशन जब तक नहीं दे सकते तब तक ये सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। GMS स्कीम 5 नवंबर 2015 से लॉन्च की गई है। सबसे पहले ये स्कीम ज्वेलर एसोसिएशन द्वारा गवर्नमेंट को करीब 1.5-2 साल पहले सजेशन दिया गया था कि जब ये गोल्ड की शॉर्टेज थी, 80-20 स्कीम चल रही थी, तब ज्वेलर एसोसिएशन द्वारा ये सजेशन गवर्नमेंट को दिया गया था कि पब्लिक के पास में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है, उसका यदि प्रॉपर वे से यदि अपने डिपॉजिट लेते हैं तो इसका अपने इंपोर्ट करना 1 साल या 2 साल के लिए इंपोर्ट करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इसका ऊपर सोचा और बजट के अंदर में ये स्कीम डिक्लेयर की और 5 नवंबर को ये स्कीम लॉन्च की गई। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आज हर घर में आज 1000 टन एवरी ईयर अपने इंडिया में सोना आता है। सालों से इतना सोना आता है, इंडिया के अंदर में पूरा सोना भरा हुआ है, घर में सोना है। यदि गवर्नमेंट ने ये स्कीम के माध्यम से यदि बैंकों में जो पड़ा हुआ है कॉइन, बार, ज्वेलरी, यदि गवर्नमेंट को यहाँ डिपॉजिट करते हैं तो मेरे ख्याल से इतना सोना जमा पब्लिक का सोना आ जाएगा कि 1-2 साल तक इंपोर्ट करने की दरकार नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने ये स्कीम हॉलमार्किंग सेंटर द्वारा जमा करने का निर्णय लिया गया। इसलिए निर्णय लिया गया है कि हॉलमार्किंग सेंटर के अंदर में SRF मशीन, फायर असेस सिस्टम, मेल्टिंग सिस्टम, पूरी सिस्टम में ऑलरेडी उसमें रखी हुई है। लेकिन फिर भी लास्ट कुछ नॉर्थ ब्लॉक में जो मीटिंग हुई थी करीब 2-3 महीना पहले, तभी भी ज्वेलर एसोसिएशन का रिक्वेस्ट था कि ये स्कीम ज्वेलर्स के द्वारा भी चलाई जाए। तो गवर्नमेंट ने ओके किया। 15,000 लाइसेंसी ज्वेलर्स है, सबको उसने इनविटेशन भेजा, आप आगे आइए और आप भी CPTC सेंटर के हिसाब से मान्यता प्राप्त करिए। 15,000 ज्वेलर्स में से मात्र एक ही ज्वेलर्स दिल्ली में से आगे आया और उसने ये CPTC सेंटर के हिसाब से लाइसेंस प्राप्त किया। देखिए इसमें ज्वेलर्स की भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा CPTC सेंटर बिठाने के लिए जो उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, करीब 1 करोड़ का खर्चा तो इजीली कोई भी ज्वेलर्स लगा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे में उसको जो मेहनत पड़ती है, आज 500 ग्राम ज्वेलरी यदि GMS स्कीम के अंदर में जमा करने आएंगे तो उसका रिटर्न 1000 रुपया से 1500 रुपया मिलेगा और उसके पीछे में उसको 4-5 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई भी ज्वेलर्स अपना इसमें टाइम खराब करेगा। वो 2 ग्राम की एक बूटी बिक्री कर लेगा ना, उसको ज़्यादा मेहनत प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट यदि ये ज्वेलर्स को ये GMS स्कीम के अंदर में आने का जो बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। और हॉलमार्किंग सेंटर के द्वारा जो ज्वेलरी आएगी तो इतना क्लियर कट पोजीशन रखा है कि कोई भी कस्टमर GMS स्कीम के अंदर में आएंगे उसको सबसे पहले गोल्ड अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक में जाके गोल्ड अकाउंट खोलेंगे,
खोलने के बाद में CPTC सेंटर में आएगा, उसकी ज्वेलरी उसके सामने वजन की जाएगी, ईच एंड एवरी पीस अलग अलग वजन करेंगे। करने के बाद में उसको SRF मशीन से उसको टेंटेटिव कैरेट बताया जाएगा कि इस ज्वेलरी ये कैरेट की बैठेगी। कस्टमर यदि रेडी होता है तो उसके सामने इंडक्शन फर्नेस में वो ज्वेलरी को गलाया जाएगा। नो डाउट उसका मीना पत्थर स्टोन उसके सामने हटाने के बाद में उसको गलाया जाएगा। गलाने के बाद में फिर से वजन किया जाएगा। वजन करके उसको सैंपल निकालने के बाद में टेम्पर प्रूफ पैकिंग करके उसको रखा जाएगा। और 3 घंटे के बाद में जब उसका रिजल्ट फायर एसे का निकलेगा, उसके बाद यदि कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और वो रिजल्ट उसको मान्य है तो उसको इमीडिएटली ऑन बिहाफ ऑफ बैंक CPT सेंटर एक तो सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। तो ये 2 बार कस्टमर को चांस मिलता है कि अपने ज्वेलरी जमा दे या नहीं दे। मैं बताना चाहूंगा कि आगे की स्कीम गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑलरेडी पहले चलती थी, लेकिन वो फेल उसी लिए हुई है कि उसके स्टेट बैंक में जाके आपको गोल्ड को जमा कर देने का था। 3 महीना बाद आपको रिपोर्ट आता था कि आपका इतना प्योरिटी गोल्ड निकला है। आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि उसको मान्य रखने के सिवाय। वो जो बोलते हैं वही को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे इस तरह का पोजीशन नहीं है। कस्टमर को क्लियरली अपने लगेगा कि हाँ ये जमा देने लायक है, उसी को जमा देगा, नहीं तो अदरवाइज वो वापस भी ले सकता है। इसलिए ये स्कीम 100% सक्सेस होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी गवर्नमेंट ने जो ये लॉन्च किया 9 महीना हो गया है, फक्त ओनली खाली टेम्पल और बल्ब जो डिपॉजिटर है 5 किलो के बेसिक का डिपॉजिटर है उसी के लिए चालू हुई है। पब्लिक के लिए अभी तक स्कीम चालू हुई नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत सारा अनाउंसमेंट बाकी है। जब तक वो अनाउंसमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे तब तक कोई भी बैंक स्कीम चालू करने की पोजीशन में नहीं है। हम लोग ने 47 हॉलमार्किंग सेंटर ने CPTC के हिसाब से लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। हम लोग के पास में रेगुलर इंक्वायरी आती है, रेगुलर हर वीक में 2-4 इंक्वायरी नहीं आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ले नहीं सकते हैं। बैंक के पास में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया हुआ है, बाई पार्टी एग्रीमेंट करके रखे हुए हैं, रिफाइनरी इधर में रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट नहीं होने की वजह से ये स्कीम अभी तक स्टार्ट हो नहीं सकी है। हाँ जी, मैं जोड़ देता हूँ थोड़ी सी। वैसे तो श्रीनिवासन जी ने एक मेन मुद्दा बताया कि इंटरेस्ट है 2-2.5% और उसकी मेकिंग है 20-25%। तो 10-15 साल हमारी भारत की नारी को सिर्फ उस बात के लगेंगे उसकी मेकिंग चार्जेस निकालने के लिए, उसकी जेब में पैसा ब्याज का नहीं आएगा। दूसरा, स्त्री को बहुत प्रेम है हमारी भारत की, वो जीवन आसानी से अपने आदमी को भी निकाल के नहीं देगी। भारत सरकार की तो बात दूसरी है, लेकिन इस स्कीम को हमको पास भी कराना है तो उसके बदले में सरकार को पूछताछ वाला कॉलम हटाना होगा और आधा किलो सोना हर स्त्री अपना जमा करा सकती है, ये घोषणा करनी होगी। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा कामयाब होगी और इतना सोना आ जाएगा कि 10-20 सालों तक इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। सेक्शन नंबर 132A के अंदर में ये चीज क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी मैरिड लेडीज के लिए 500 ग्राम, अनमेरिड के लिए 200 ग्राम और जेंट्स के लिए 100 ग्राम यहाँ तक यदि जमा कराता है कि कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन और इंक्वायरी नहीं आएगी। अभी हर्षद भाई, हमको जो जानकारी है, लास्ट एक रेगुलेशन थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, 500 ग्राम का नीचे का गोल्ड भी अभी एक्सेप्टेंस होगा, ऐसा कोई सर्कुलर आया है। आप थोड़ा जानकारी, कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। दूसरा बात यह है, आपको जो स्टेटमेंट है उनके साथ मेरे को कुछ ऐड करना है और ये हमको ये बोलना है, you know what is the underlying message of gold monetization scheme. Gold monetization scheme is meant for utilizing the idle gold jewelry which is there with the consumers to recycle it in the jewelry industry itself. Therefore, for the cycle, there is a participation of banks, jewelers, hallmarking centers for testing and checking of the goods,
and the consumer itself. But what is the end-to-end use? That is, consumers' gold going again to jewelers for refabricating or recycling into another jewel. तो अभी ये साइकिल में ज्वेलर एंड रिसीवर है और उनको इनिशिएट करने वाला है कंज्यूमर, जो पहले अपना आइडल गोल्ड जमा करेंगे. इसमें जो मेरा पूर्वोक्त वक्ता स्पीकर ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, वो ज्वेलर के लिए रिवार्डिंग नहीं है, वो कंज्यूमर के लिए रिवार्डिंग नहीं है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग. उसमें कुछ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो गोल्ड कहाँ से आया है, सोर्स. ये सब चीज़ थोड़ा सा ये सक्सेस होने के कार्य में रुकावट आ रहा है. देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन. बट द मेन पॉइंट इज दैट इफ द बैंक इज working as an intermediary and the hallmarking centers are working as the intermediary for recycling of that gold which is from the consumer to the end jewelers. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जो हम लोग from the Jewelry Association we are trying to make a representation to the government कि ज्वेलर अभी जो BIS हॉलमार्क अप्रूव ज्वेलर है 15,000 ज्वेलर्स अक्रॉस इंडिया, उनको सिस्टम को वो अभी सब अपने अपने शोरूम में ज़्यादा तरह से एक तरह मशीन रखते हैं. उनका मशीन का स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा अपग्रेड करके, और जैसे अभी 300 हॉलमार्किंग सेंटर है उसमें शायद 100 या 150 अप्रूव है ये स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए. ऐसा अगर ज्वेलर को साथ वो प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर देंगे और उनको साथ ज्वेलर को साथ बैंक को टाई अप कर देंगे, और मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स अभी बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं, तो बैंक का भी एज ए फ्रॉम द एपेक्स रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसमें बैंक वो ज्वेलर को अगर अलाउ करते हैं कि आप मेरे तरफ से वो गोल्ड रिसीव करो एंड वट एवर यू रिसीव यू गिव अस अ सर्टिफिकेट कि इतना गोल्ड मिला, तो वो आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा एज ए गोल्ड लोन फ्रॉम द बैंक, और बैंक उसमें इंटरेस्ट लेते रहेंगे और उसको पेमेंट वो कस्टमर के लिए बैंक का अकाउंट में उनका एक लोन गोल्ड अकाउंट खोल जाएगा. तो इसमें प्रोसीजर बहुत सारा सिंप्लीफाई हो सकता है, और ये सब हम लोग प्रपोजल दिए भी हैं लेकिन अभी वो अंडर कंसिडरेशन है. तो अगर इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हमको लगता है कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है. दूसरा, अजमेरा जी के लिए और एक क्वेश्चन है. यू आर मोस्ट पॉपुलर नाउ इन आवर पैनलिस्ट. आर हॉलमार्किंग सेंटर्स रियली फेलिंग ज्वेलरी कंटेनिंग PGM? मतलब हॉलमार्किंग सेंटर क्या PGM डिटेक्ट करने में फेल हो रहा है? फेल नहीं हो रहा, पास हो रहा है. शायद उसमें आपने देखने में शायद भूल हुई लगती है कि हॉलमार्किंग सेंटर द्वारा ही PGM पकड़े जाते हैं. क्योंकि ये 7-8 साल पहले की बात है जब बॉम्बे में से जितने आइटम आ रही थी, बॉम्बे से मशीन चेन वगैरह की बहुत सारी ऐसी आइटम आ रही थी जिसमें PGM ग्रुप ऑफ मेटल हॉलमार्किंग सेंटर द्वारा ही पकड़े गए थे. और उसके बाद ही ये हाईलाइट हुआ था कि हाँ ये इस तरह का मिलावट हो रहा है. और आज की तारीख में भी मिलावट हो रही है. जो ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं होती है उसको मालूम है कि ये हॉलमार्क नहीं होने वाली है, उसमें PGM ग्रुप ऑफ मेटल अभी भी मिला रहे हैं. 80 टन का. हॉलमार्किंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आपको पास एक सीधा साधा क्वेश्चन है कि सब हॉलमार्किंग सेंटर के PGM डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल है, काबिल है? सब पीस ऑफ ज्वेलरी को सबसे पहले हमको SRF मशीन से चेक करना है कि उसके अंदर में कितनी प्योरिटी, टेंटेटिव प्योरिटी है. और दूसरी चीज हमको साथ साथ में ये भी देखनी है कि उसमें PGM ग्रुप ऑफ मेटल है कि नहीं है. यदि है तो उसी टाइम में वो लोट में से वो पीस को रिजेक्ट करके रिटर्न कर देते हैं. इस तरह का ईच एंड एवरी पीस को हमको चेक करके
हॉलमार्क करते हैं, और प्लस फायर एसए में भी चेकिंग होता है। जैसे आगे मैंने बताया कि फायर एसए में भी हमको लगता है कि इसमें पीजीएम ग्रुप ऑफ मेटल है, तो हम वो पूरा लाट को कैंसिल कर देते हैं। तो 100% पूरी कोशिश होती है हमारी हॉलमार्क सेंटर की कि पीजीएम ग्रुप ऑफ मेटल न हो, और जिसमें मिलता है उसको ज्वेलरी को बिना हॉलमार्क किए हम ज्वेलर्स को रिटर्न देते हैं। मेरे जी, मैं एक्चुअली एज मैन्युफैक्चरिंग में आपको पूछता हूँ, अभी जो सैम्पलिंग गवर्नमेंट ने दिया है इसमें, वो हिसाब से 100% ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, उसमें मालूम नहीं कर सकता है। आप बोलता है एक सर 2-3 स्पॉट में करता है, आप ही बोलता है ये नॉन होमोजीनियस है। अपन जिधर टच करता है ये जस्ट जाता है 25 माइक्रोन। अगर वो स्पॉट पे होगा, कोलीमीटर का साइज होता है 0.0 to 0.05, उधर डिटेक्ट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं है। सैम्पलिंग में भी बच सकता है। अभी एक्चुअली जिधर इरिडियम प्रेजेंस, रुथेनियम प्रेजेंस होगा, उधर अपन सैम्पलिंग से सैंपल लिया तो ये डिटेक्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं है। आप फायर से करता है, कट पीसेस लेता है, उसमें भी क्योंकि अपना लॉट में बहुत सारा होता है, ये जितना आदमी होमोजीनियसली वो उसको निकालता है वो भी मालूम नहीं है। मेरा मैन्युफैक्चर मैं बोलता हूँ अभी ये हॉलमार्किंग सेंटर से 100% फुल प्रूफ नहीं है। प्लीज़ बोल दीजिए। मैं आपसे बात में सहमत हूँ, 100% फुल प्रूफ मेथड नहीं है पीजीएम ग्रुप ऑफ मेटल को पकड़ने के लिए, लेकिन हमारी कोशिश 100% हम लोग करते हैं कि इसमें से यदि पीजीएम ग्रुप ऑफ मेटल हमको दिखाई देती है जो एसआरएफ करने पे, और हम जब स्क्रैपिंग करते हैं ना, पूरी ज्वेलरी में से पोर्शन में से पाउडर निकालते हैं, तो वो ज्वेलरी में से स्क्रैपिंग में चांसेस बेसी रहता है। यदि उसमें पीजीएम ग्रुप ऑफ मेटल रहते हैं तो फायर से करने के बाद में ऑर्नेट के ऊपर में ब्लैक स्पॉट आ जाता है, और उसके ऊपर में फिर से हम चेक करके देख लेते हैं कि हाँ इसके अंदर पीजीएम ग्रुप है, तो वो पूरा लोट ही हम लोग कैंसिल करते हैं। लेकिन ये मैं 100% श्रीनिवासन जी से सहमत हूँ कि 100% फुल प्रूफ मेथड नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन योगेश जी से है। एक ऑडियंस से क्वेश्चन आया है कि आप एसोसिएशन का कर्मकर्ता होने के नाते क्या आप अलाउ करेंगे कि जो ज्वेलर्स लास्ट कई महीनों में 5 बार तक ज्वेलर हॉलमार्किंग में फेल हो चुका है, उनके नाम वेबसाइट में डालने के लिए, जो कि कस्टमर्स में जागरूकता है? अब गैन हमारे पाले में आ गई है, हॉलमार्क सेंटर निकल गए हैं। अजमेरा जी को थोड़ा रिलीफ मिला होगा कि अब सिंगल साहब फंस गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हॉलमार्क सेंटर में इतनी ताकत है, इतनी सच्चाई है कि वो लिस्ट हमको प्रोवाइड करे कि ये ज्वेलर चोर है, ये गलत है, हम उसको अपने मार्केट एसोसिएशन में भी बोर्ड लगा देंगे उसका नाम, और वेबसाइट में भी डाल देंगे। लेकिन इतनी ताकत हॉलमार्किंग सेंटर में तो हो, वहां पर तो ठप्पे लगते हैं। आप जाइए, मेरी चेन का मेरे नाम से हॉलमार्क सेंटर वाले थर तक कांपते हैं, लेकिन मेरी चेन की स्टाफ ले जाता है गलती से 18 वाली 22 की मोहर लगा के ले। तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि हम ब्लेम करें ज्वेलर हॉलमार्किंग सेंटर को और हॉलमार्किंग सेंटर कारीगर को। मुद्दा ये है कि हम तीनों इसकी जिम्मेदारी लें और सच्चाई से इसका पालन करें, तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये सारे ग्राहक अपने घरों में जो फालतू पैसा पड़ा है ज्वेलरी खरीद के ले जाएंगे, ये मेरा दावा है। सर, हम लोग वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस डिस्कशन गोइंग ऑन, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ज्वेलरी, यू आर नॉट टचिंग बुलियन देयर। द बेसिक रूट कॉज ऑफ इरिडियम is the raw material being consumed in making jewelry is substandard. If you control your input material, there will not be any question of iridium. Why iridium is coming in the jewelry manufacturing? Are you checking your raw material out of which you manufacture your jewelry? You are not doing it. And a center rejecting a jewelry lot goes to the next center, it's getting hallmarked. Like Mr. Srinivasan said, there is no foolproof method available anywhere in the world to detect iridium metal, irrespective of any equipment. You said yesterday some 40 lakhs worth of, you have ICP, you have mass spectrometry, you have all type of equipment. No equipment is capable to detect
100% foolproof method of iridium or PGM metals. The idea is basically, why don't you control your input of raw material, then this problem can be solved. But sir, raw materials means raw gold, Yeah, bullion. You mean to say that there is iridium or other material inside the raw gold, Yes. which is sourced from How does it come into jewelry? अनऑथेंटिक सोर्सेस और उससे जो ज्वेलरी बनती है वो हॉलमार्क में ज्यादा है, ये आपको बोलने का है. Sir, the local nitric acid refining, which is adopted by 90% of the jewelers in the country, local nitric acid refining, it cannot remove iridium or ruthenium. Only good refineries, 5 or 6 refineries in the country, they can remove iridium and ruthenium. So 90% of the trade is using nitric acid refining. The old ruthenium is getting circulated and circulated again and again through the old world. That is the real reason. सर एक्चुअली क्या है, ये दो टाइप का से मिस्टेक होता है. एक जो रॉ मटेरियल हम जिधर से ले रहा है, ये रिफाइंड बराबर नहीं होता है. अगर LBM में अक्रेडिशन ऐसा कुछ होता है तो उसका सिस्टम्स होता है. 100% हम बोल सकते हैं कि दिस इज फ्री फ्रॉम प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स. अपन गवर्नमेंट ने सब स्टैंडर्ड रिफाइनरी को भी अलाउ कर दिया. वो लोग के पास फैसिलिटी है ही नहीं है. वो लोग रिफाइन करके गोल्ड बार बना के देता है, वो उसमें अपन ज्वेलरी बनाता है. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सेकेंड, ये इंडस्ट्री मैं अनऑर्गेनाइज्ड हाई करके बोलता हूँ. उसमें क्या है, जानबूझ के डुप्लीकेट बार बनाता है. उसमें इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम मिक्सिंग करता है. ये दो टाइप से होता है. कल ही अपन बुलियन मर्चेंट को बोल नहीं सकता, ऐसा जो धोखाबाजी करता है, चोरीबाजी करता है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा. वो गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं करता है. वो कंट्रोल नहीं करता है, वो हिसाब से पूरा मार्केट में इंफीरियर बुलियन मिलता है. ये इंफीरियर बुलियन से ज्वेलरी बनता है. वापस एक्चुअली क्या, ये ज्वेलरी में इरिडियम प्रेजेंस होता है. ये ऐसा से इसके अंदर में गवर्नमेंट ने BIS ने सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी सिस्टम चालू किया गया है. जैसे हॉलमार्क ज्वेलरी होती है, प्राइवेट सेंटर में जाके थर्ड पार्टी गारंटी दी जाती है. सिमिलरली बुलियन के लिए भी गवर्नमेंट ने, BIS ने सेल्फ सर्टिफिकेशन का सिस्टम चालू किया गया है. मतलब कि जो रिफाइनरी BIS के अंदर में रिकॉग्नाइज होते हैं, वो अपने बार के ऊपर में BIS का लोगो लगा सकते हैं. वो फ्री फ्रॉम PGM रहेगा. ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लाइसेंस देना चालू कर दिया है. और यदि ज्वेलर्स अपना रिफाइन करने का माल एक्वा सिस्टम से जहाँ रिफाइनरी होता है उसी जगह पे रिफाइन करावे तो फ्री ऑफ PGM ग्रुप ऑफ मेटल हो सकता है. और उसको BIS का रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी में करावे तो सबसे ज़्यादा है. 100% फ्री ऑफ PGM ग्रुप ऑफ मिलेगा. और BIS का लोगों के साथ में वो यदि आता है तो यदि मार्केट में से ये PGM ग्रुप ऑफ मेटल वाली पुरानी ज्वेलरी आती है तो वो उसमें से फिल्टर हो जाएगी और PGM ग्रुप पाउडर अलग हो जाएगा और नई जो ज्वेलरी बनेगी वो फ्री ऑफ PGM ग्रुप ऑफ बनेगी. Two issue from the industry. As an industry, we have to decide whether we are still eager to sell the inferior quality to consumer, because that's what we are talking about, purity. Same manufacturer from India, when they are selling the jewelry to Dubai, there is no question of purity. And same Indian consumer going to Dubai, buying the same jewelry, they are saying, oh, Dubai, purity is pure. In India, purity is not pure. There's two main reasons which my other friends Anil was saying. One is all the jewelers, or as the Srinivasan Bhai just said, that the inferior or a small refinery, so-called refinery, they just refine the old jewelry in their old methods, in which your PGM group of metal is there, and then same metal you are using for jewelry. None of the hallmarking center can detect it. It's a trial and tested. Okay, they will take, as you have said, 4 place, 5 place. It's not homogeneous. In the international market, if you are making a jewelry, you have to make a jewelry without PGM bullion, right? Whether you call LBMA, whether you call the India Good Delivery.
Let's work with the India Good Delivery without PGM. You as a jewelers take a decision that we will use only India Good Delivery or BS mark bullion, no other bullion. 80% of problem will be resolved. We understand your concern, and now what it appears in India, right from sourcing the raw material to putting it into the hallmarking center and ultimately finishing it as a finished jewelry, BIS approved hallmark, and selling it to our consumer. The whole process needing a third party certification or a independent, robust audit process which the diamond industry has initiated, which one of our speaker, Mr. Kinjal Shah, has referred to. Even in the gold jewelry industry, maybe that is the need of the hour to introduce and initiate a third party audit process which will be robust enough to audit all the sourcing in a jewelry organization and give a independent certification so that the industry can accommodate and invite this kind of audit process to rectify for its internal improvement, because everything we cannot put on government shoulder and sit right and say I have no duty and no responsibility. If the government is the government, who is government? Government is we are the government. Therefore, isn't it the industry's responsibility to set up an independent body, audit body who will be powerful enough, who will be independent enough to act on behalf of the industry? And as an industry body, we recognize that kind of audit organization and will honor that audit process. I think we should contemplate, we should deliberate this issue in our industry. You said very rightly, and in our RJC Responsible Jewelry Council, we do have two standards. One which is code of practices, which is applicable to all our commercial members. Those who become our member, they have to comply with code of practices, which are the standards for best practices, responsible and accountable way doing business, AML, CFT compliance, health and safety requirements and all, responsible sourcing and all. But at the same time, we do have another standard which is COC, which is chain of custody. Now, chain of custody is very, very important and which is genuinely applicable to gold and platinum metal industry. There are several refiners, across the globe who are our member, and solution to all your questions, you just join, under COC, chain of custody, and your entire pipeline is clean and crystal clear, and you can very easily demonstrate that, we have been doing our due diligence on our own, and it has been already, certified by third party, external people, and there is a solution. Solution is already there. You need not to look into somewhere outside. Well, I'm Technical Director of the Birmingham SA office, and my question is addressed to Mr. Ajmera. I'll ask question in Hindi. Mr. Ajmera, आप काफ़ी देर से ये बोल रहे हैं कि जितने भी आपके पास अगर PGM containing jewelry आएगी, तो आप reject कर दें. And that is really creating confusion in my mind. Because the white gold jewelry that contains palladium, palladium itself is a PGM. Will you reject that kind of jewelry here? येलो गोल्ड का ही हम लोग करते हैं हॉलमार्क, व्हाइट गोल्ड में क्योंकि आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं कंप्लीटली रॉन्ग है. पीजीएम आप बोल रहे हैं, उसका मतलब है कि सारे प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स में जो कुछ भी कोई भी प्लैटिनम ग्रुप मेटल आपकी ज्वेलरी में होगा तो आप रिजेक्ट कर देंगे. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. व्हाटएवर आई हैव रेड योर हॉलमार्किंग लॉ हियर, इट इज नॉट रिटन देयर. गोल्ड के अंदर I think you could be specific to certain metal. I know the iridium is an issue here in this country, but white gold jewelry is sold world over, and that contains palladium. Forget about the nickel side, but palladium itself is a big PGM. I think Harshad Bhai can. These are the two main PGM which we are talking about, that white gold which are telling palladium, platinum. To that extent, sometimes even platinum jewelry has iridium in it.
ये जो नया रूल के अंदर में ये गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियसली सोच रहे हैं कि जो 5-6 कैरेट के ऊपर में जो हॉलमार्क लग रहा है उसके बदले 3 ही कैरेट के ऊपर हॉलमार्क होगी, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। ये सबका अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से वेरी शॉर्टली 2 महीना में पूरी गाइडलाइन तैयार हो जाएगी, उसके बाद में अनाउंसमेंट कर सकती है। How can we create an organized market for scrap gold and augment the internal supply of bullion? That is a very crucial issue today in front of the jewelry industry. देखिए, उसके लिए एक्वारेजर सिस्टम मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। उसके अंदर IR और तरह तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो एक्वारेजर के लिए हमने अपने जो भी सोना बदलने वाले हैं, डीलर हैं, उन लोगों से मशीनों का ऑर्डर कराया है। बहुत ही जल्दी वो मशीनें आएंगी, तो उसके अंदर से सोना अलग हो जाएगा, बाकी धातु सब अलग हो जाएगा। दूसरा सवाल मेरे पास आया है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ऑल इंडिया ज्वेलर एसोसिएशन होना चाहिए जिससे अवेयरनेस हो। देखिए, ऑल इंडिया ज्वेलर एक्शन कमेटी ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बनी थी और बहुत ही जल्दी अगर सरकार की और आप लोगों का साथ मिला तो ये रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में खड़ी हो जाएगी। आपकी बात पूरी तरह से सरकार के सामने साफ सुथरे लफ्जों में 1 to 1 जैसे सीधी बात करते थे आज तक में सीधी बात होगी। स्क्रैप गोल्ड प्रोसेस में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि PIS रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी में यदि आप स्क्रैप गोल्ड को एक्वा सिस्टम से आप रिफाइन कराइए तो ये दूसरी जो इम्प्योरिटी मटेरियल है PGM ग्रुप ऑफ मेटल वगैरह फिर से रिसाइकलिंग में नहीं जाएगी। इरिडियम रुथेनियम ऑस्मियम का बहुत बड़ा थ्रेट है। गवर्नमेंट इसको सीरियसली उसमें इन्वॉल्व होना मांगता है। इसको अक्रेडिशन में LBM में इतना नहीं होगा तो LBM से थोड़ा नीचे इंडियन के लिए कम से कम अकोरिजिया ऐसा कुछ गवर्नमेंट लागू करना पड़ेगा। अभी बहुत सारा रिफाइनरी लाइसेंस ही नहीं है, ऐसा ही करता है, पोल्यूट करता है, अभी सब चल रहा है, नाइट्रिक एसिड से करता है। ये सुधार आना मांगता है, ये सुधार आया तो कि ये गोल्ड का अच्छा दिन आएगा, उसको गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। मैं अजमेरा जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो ये नए रूल्स सामने आए हैं कि 14, 18, 22 कैरेट, तो येलो ज्वेलरी के लिए तीनों मान्य होंगे या जैसे कि येलो ज्वेलरी 22 की बात आ रही है, 18 में आ रही है कि डायमंड ज्वेलरी और 14 एक्सपोर्ट ज्वेलरी, तो क्या तीनों ही है येलो ज्वेलरी में चलेंगे? खाली कैरेट का डिसाइड किया गया है, येलो ज्वेलरी के लिए ही है, कोई भी एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक के लिए कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। अभी जो बहुत सारे कैरेट रहने की वजह से कस्टमर इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज कोई भी ज्वेलर्स 21 कैरेट का ज्वेलरी या 17 कैरेट का ज्वेलरी हॉलमार्क करके रखता है, कस्टमर को खाली इतना ही बोलता है कि हॉलमार्क है, तो कस्टमर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही प्योरिटी का माल है। उसीलिए ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि इसमें जनरली 22 कैरेट की ज्वेलरी और डायमंड वगैरह के लिए 18 कैरेट की और 14 कैरेट की 3 ही ऑप्शन रखा है। ये इतनी बात हम लोगों को मालूम है, कहने का मतलब जो 18 कैरेट 750 जिसको ज्वेलरी बोल रहे हैं, क्या वो पीली धातु जिसको येलो ज्वेलरी बोलते हैं वो 750 भी आगे चलेगी या ओनली 916 ही चलेगी? नहीं, सभी चलेगी, उसमें येलो ज्वेलरी भी 18 कैरेट की चल सकती है। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much for participation in this panel. Starting with our first participant this morning, Mr. K. Srinivasan. A big thank you going out to Mr. Kinjal Shah for joining us on the panel. A big thank you to Mr. Harshad Ajmera for some very, very informative nuggets that he shared today. Mr. Yogesh Singhal, I think each one of you have individually enjoyed whatever he had to share. We can put our hands up for him. मैं निवेदन करूंगी शिरपुर रिफाइनरी से मिस्टर V. के अग्रवाल को कि वो मंच पर आएं और मिस्टर सेन को एक स्मृति चिन्ह दें।